Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gnan Manjari Vidyapith Mova. Again, welcome to all of you in this online session of the mathematics in class 9th. And we all know that we already started the unit number 1, that is real number system. So today we just get it some reviews whatever we learned at the last lecture, that is related with the rational numbers and irrational numbers. So today we just get it through the practice question 4.1. And in the previous lecture we also discussed about some NCERT solutions that I provided into the last lecture. So today we will start basically whatever we learned into the previous lecture that we discussed first, and then after we will move on to the next point. So first of all, this is a practice question 4.1, that is from your supplementary book. You have to started this practice question 4.1, and you can also write down this practice question 4.1 in your fair book today. So from these points to end of this video, each and every questions you have to write in the today's homework also. So be careful about it, and simultaneously you have to watch carefully. So let us move on it. So first of all, this is the practice question 4.1, and inside the 4.1 we just check it out that whether it's considered uh, the following numbers are irrational, and explain your answer mathematically. So first of all, how to say that this particular numbers are in irrational or not, and if it is irrational, then explain whatever your answer, that is always be given in mathematically, not given like a simple word or simple sentences. So first of all, first number is suggesting here that a option is there, 0.890000 dot dot dot. So that is a concern here with first number. So we can say that here the terminating part is there, and one numbers is obviously here the repeating, that is 0. So rational, it is a terminating decimal expansion. We can say that it's obviously rational number ही है. ये rational है कि irrational है वो आपको बताना है. So 0.890000, then we can say that all the zeros are continuous over there. So if it is continues with the zero of any digit, so obviously we can say that it's a terminating decimal expansion. So we can say that we can also write it into the 0.89, because 89 के बाद सभी zeros है. So that is a one kind of terminating decimal. That's why we can say that A is a rational. Is it clear? Same thing we are using into the second one. That is a B minus 10.76197619 dot 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 76197619 so on. So it is also be rational. Why? Because it's a non-terminating recurring, मतलब repeat हो रहा है. आप देख सकते हो कि 7619 का पूरा ब्लॉक फिर से रिपीट हो रहा है, 7619 7619 7619. इसका मतलब ये है कि that is also be one of the rational, because it's a non-terminating recurring decimal expansion where 7619 is being repeated. So that's why it is called a rational. Third one numbers, that is 0.732951 is there. So obviously it is called a irrational. Why? Because it is non-terminating. एक तो पता चल रहा है कि वो non-terminating, दूसरी चीज वो non-recurring भी है, where no digits or set of digits is being repeated in a pattern. ये पैटर्न में आप देख सकते हो कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और रिकरिंग भी नहीं है. सो ऑब्वियसली वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर नंबर इज एन इरेशनल नंबर. तो ये तीन एग्जांपल्स ए बी एंड सी सभी का आपको बताना है कि दैट इज रेशनल और इरेशनल. यदि इरेशनल है, रेशनल है, तो आपको मैथमेटिकली उसको आंसर देना है. So that is with the answer of A, B and C.
Now next one is concerned that D and E. अब देख सकते हो that is a portion where the practice question 4.1 is there. So inside the D, first one is the under root 169. Why we can say that it's a rational number? Because of the square root of the perfect square are the rational. किसी का भी स्क्वायर रूट यदि वो परफेक्ट स्क्वायर कंसिडर्ड होता है, so obviously that is a rational. So under root 169 का 13 and 13 is a rational number. तो स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर 169 का 13 होता है, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है. सो 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 169 का स्क्वायर रूट है वो परफेक्ट स्क्वायर ही है. दैट्स वाई 13 इज एन रेशनल नंबर. ये रेशनल नंबर ही होगा. सो ये बात हो गई डी की. अब हम बात कर रहे नेक्स्ट वन ई की. अंडर रूट 1 डिवाइड विथ अंडर रूट 30. सो दैट इज कंसिडर अंडर रूट 1 अंडर रूट 13. 1 अंडर रूट 1 का 1 होता है, बट दैट इज कंसिडर द अंडर रूट 30. एंड अंडर रूट 13 जो है वो इरेशनल नंबर है. That's why we can say that under root 1 divided by under root 13 is irrational. आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी यदि एक इरेशनल कंटिन्यू रहता है, तो ऑब्वियसली ये दोनों चीज को हम कंसीडर करके उसको इरेशनल ही कहेंगे. सो ये बात हुई जहाँ पे कंडीशन होती है, जहाँ पे p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं. p बाई क्यू के फॉर्म में भी p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए. यदि वो इंटीजर है तो वी कैन से दैट रेशनल. अदरवाइज p बाई क्यू के फॉर्म में है फिर भी वो इंटीजर नहीं है, लाइक अंडर रूट 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 13. अंडर रूट 13 इज नॉट इंटीजर नंबर. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द लास्ट वन इज एन इरेशनल नंबर. इज इट क्लियर? तो ये हुआ आपका रिव्यू क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन 4.1. ये पांचों पांच ABCDE आप अपनी फेयरबुक में लिखेंगे और वही चीज आज आप होमवर्क में भी सेंड करेंगे. इट इज क्लियर? नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. So let us move on to the second points of related with the irrational number, that is a number on the number line. How to represent this particular irrational numbers on the number line. कैसे हम नंबर लाइन के पर इस किसी भी टाइप का इरेशनल नंबर को हमें पुट करना है, रिप्रेजेंट करना है. तो ये चीज हम देख लेते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी वी लर्न अबाउट हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. But now from this topic we have to learning about the representation of irrational number on the number line. तो हम कैसे irrational number को number line के पर represent करते हैं. So first of all we can say that representing irrational numbers onto the number line. So if irrational numbers we have, then that is obviously non-terminating, non-recurring decimal expansion. That already we learn about the definition of irrational number. So suppose if we using the under root 2, because of we know that the value of under root 2, मैंने कल ही बोला था कि अंडर रूट 3, अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 5 की जो वैल्यू मैंने अगले लेक्चर्स में बताई, आपकी सप्लीमेंट्री बुक में भी अवेलेबल है, वो कहीं बुक में लिख लो और याद रख लो कि अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या है और अंडर रूट 5 की वैल्यू क्या है. So all this under root 2, 3 and 5, we know that the value of all. So here we are using under root 2. So we know that the value of under root 2 is equal to 1.4142 dot dot dot. जितना भी आपको याद रह सके इतना आप उसकी वैल्यू आप याद रखो. Now we all know that this is the value 1.4142. So obviously that decimal is always be put into the between 1 and 4. 1 और 4 के बीच में ये वैल्यू आ रही है, क्योंकि the decimal is displayed like 1.4 is there. So decimal is between 1 and 4.
So this is an approximation value, which means that the decimal digit will appear randomly. What if we want to find a closer approximate of this number? A number line can help us do that. So basically, this particular value 1.4142, that is just one kind of approximate value. But if we have to find the closer approximation, or sometimes we have to go for the near one of that value, that time we used to hear the number line. नंबर लाइन के अलावा हम कभी अप्रोक्सीमेशन क्लोजर अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते. हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर सकते, बट इफ वी हैव टू यूज मोर क्लोजर ऑफ दैट अप्रोक्सीमेशन, ऑलवेज वी आर यूजिंग द नंबर लाइन. ये क्लियर हो गई ये बात. सो नेक्स्ट वन इज दैट there are two cases to represent of an irrational number on a number line. नंबर लाइन के ऊपर यदि किसी भी इरेशनल नंबर्स को हमें रिप्रेजेंट करना है, दैट टाइम वी आर यूजिंग द टू केसेस. आइदर वी आर यूजिंग फर्स्ट केस व्हेन द नंबर इनसाइड द रूट इज अ पॉजिटिव इंटीजर. व्हेन द नंबर इनसाइड द रूट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एग्जांपल अंडर रूट 2 है, इनसाइड द रूट होगा और पॉजिटिव होगा, तब पहला केस हम इंप्लीमेंट करेंगे. दूसरे केस के अंदर व्हेन द नंबर इनसाइड द रूट इज अ डेसिमल नंबर, मतलब जो भी रूट में होगा वो डेसिमल में होगा. फॉर एग्जांपल हियर कंसीडर 5.3. सो 5.3 इज अ डेसिमल बट इट इज इनसाइड द रूट, और यहाँ पे पॉजिटिव बट इनसाइड द रूट, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर अंडर रूट 2. तो ऐसे दो केसेस को हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दोनों केस हमें सीखना है. सो वी आर रैपिडली गो ऑन दैट. सो फर्स्ट वी आर यूजिंग टू रिप्रेजेंट दिस फर्स्ट केस व्हेन द नंबर इनसाइड द रूट इज अ पॉजिटिव इंटीजर. जब ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, फॉर एग्जांपल अंडर रूट 2, सो वी नो दैट इट लाइज बिटवीन 1 एंड 2. आपको पता है कि 1.41 है, तो ऑब्वियसली ये किस दो नंबर के बीच में नंबर होगा, 1 एंड 2 के बीच में. तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करके हम बता सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में ये अंडर रूट 2 आने वाला है. इतना तो हमें समझ में आ जाता है, सीधा सा है, क्योंकि उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें पता है 1.4142. That's why we can say that this particular under root 2 lies between number 1 and 2. एक और दो के बीच में ही अंडर रूट 2 आएगा. सो इन द नंबर लाइन 1 is at distance of 1 unit from 0. आप देख सकते हो ये डिस्टेंस जो है वो 0 से 1 का कितने यूनिट का है, 1 यूनिट का. एंड फ्रॉम 0 एंड 2 इज ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट. आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 यूनिट का हुआ ना, क्योंकि 0 से 1 का 1 यूनिट होता है, तो 0 से 2 का कितना डिस्टेंस होता है, 2 यूनिट्स होता है. सिमिलरली अंडर रूट 2 विल बी a डिस्टेंस ऑफ अंडर रूट 2 यूनिट्स फ्रॉम 0. आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो अंडर रूट 2 यूनिट्स होगा. तो ये चीज आप याद रख लो. कोई भी नंबर लाइन के ऊपर 0 से 1 और 0 से 2, यानी 0 से 1 1 यूनिट होता है, तो 0 से 2 2 यूनिट होता है. सिमिलर वे अंडर रूट 2 0 से अंडर रूट 2 यूनिट होगा. सिमिलर, क्लियर. नाउ दिस वन वी हैव टू से दैट आफ्टर कंक्लूडिंग ऑफ इट वी विल नीड अ लेंथ इक्वल टू अंडर रूट 2 यूनिट. हमें अब जो इतनी लेंथ है, ये लेंथ की बात कर रहे हैं 0 से अंडर रूट 2 की. तब वन वे ऑफ फाइंडिंग द लेंथ ऑफ अंडर रूट 2 इज बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. हम उसके लिए ये अंडर रूट 2 की लेंथ फाइंड करने के लिए हम कौन सी चीज यूज करेंगे, कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम. सो इफ वी चूज दिस ऑल थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. याद रखो, यदि ये चीज आपके सप्लीमेंट बुक में भी है, एक वीडियो लेक्चर में भी आप देख रहे हो,
यदि कुछ याद नहीं रहता, यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली राइट डाउन ईच एंड एवरी थिंग्स बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल एंड easy thing. So after deciding that under root 2, if we want to find out the length of this under root 2, then we are using a number line and we are using the one particular theorem. The name of that theorem is Pythagoras. So if we choose the distance between 0 and 1, a vertical length of 1 unit, and join the two far ends, then a right angle triangle is formed. ये बहुत अच्छी बात कही है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक 0 से 1 का एक डिस्टेंस है, वो 1 यूनिट है, समझ लो. एंड वही सेंटेंस में पढ़ रहा हूँ, 0 एंड 1 यूनिट का मेजरमेंट है 1 यूनिट. यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ तक. ओके, दैट इज अ 1 यूनिट. ए वर्टिकल लेंथ, मतलब ये वर्टिकल लेंथ इस यहाँ से यहाँ तक की बात कर रही है, यहाँ से यहाँ तक, दैट इज अ वर्टिकल लेंथ. दैट इज ऑल्सो भी 1 यूनिट, ये भी एक 1 यूनिट है. एंड ज्वाइन टू फार एंड्स, मतलब एक ए एंड है और एक ए एंड है. ये दोनों एंड्स को यदि हम जोड़ देते हैं, ए एंड्स को यदि हमने जोड़ दिया तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है. समझ में आ गया? फिर से मैं बोल रहा हूँ, 0 से 1, ये नीचे वाला 0 से 1 डिस्टेंस वो 1 यूनिट का है, वर्टिकल भी 1 यूनिट का है. यदि ये दोनों पॉइंट्स को, 0 वाला और ऊपर वाला पॉइंट्स को यदि हम जोड़ देते हैं तब बनता है वो, दैट इज अ वन काइंड ऑफ राइट ट्रायंगल. सो बाय द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस मतलब कौन सी साइड होगी, ये साइड हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर एंड यूनिट का स्क्वायर. सो हम ऐसा भी यूज कर सकते हैं कि यदि हमें हाइपोटेनियस यूज करना है तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसको हम हाइपोटेनियस बोल देते हैं, दैट इज एच. दिस साइड इज नॉन एज द हाइपोटेनियस. दिस इज कंसिडर्ड एज ए बेस, इसको हम बेस बोलेंगे, और दिस इज कॉल्ड अ साइड. सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर. तो ये हो गया आपका पाइथागोरस थियरम. हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर. ओके, तो वही चीज यहाँ पे मेंशन की है. हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर. सो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि बेस का भी 1 यूनिट है और साइड का भी 1 यूनिट है. सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या होता है, 2. So obviously 1 square plus 1 square, that is a 2. That's why if we remove the hypotenuse square, इस साइड से यदि हम स्क्वायर निकाल देते तो सामने की साइड पे क्या होगा, अंडर रूट होगा. दैट्स वाई 2 इज कंसिडर्ड एज ए अंडर रूट. तो ये हो गया hypotenuse is equal to under root 2 by keeping the point end of the compass on 0. अब हमें क्या करना है, हमारा ज्योमेट्री बॉक्स निकालना है. आपके पास जो कंपास है वो कंपास का यूज करना है. उसमें से जो कंपास टूल है, जैसे कि 2 लेग वाला होता है ना, उसमें हम पेंसिल यूज कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपास. वो कंपास और रूलर का आप यूज करना है. और कैसे करना है, तो बाय कीपिंग द पॉइंट एंड ऑफ द कंपास ऑन 0. एक पॉइंट्स आप 0 के ऊपर रख दो, यहाँ पे 0 के ऊपर कंपास का एक लेग वहां पे फिक्स कर दो. एंड यूजिंग द हाइपोटेनियस लेंथ एज द रेडियस, आप यहां से दूसरा लेग है वो पूरी ये लेंथ है वो मेजर कर लो, यहां से यहां तक. समझ में आ रहा है? इसी पॉइंट से आगे ये जो हाइपोटेनियस की लेंथ है उस लेग को वहां तक आप खींचो. We can easily locate under root 2 on the number line. अब वही नंबर, ये जो लेंथ आपके पास आ गई, उसी लेंथ से हम अंडर रूट 2 नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, जस्ट वी चेक इट आउट.
Now let us understand the steps of representing under root 2 on the number line in detail. अब जो स्टेप्स है ये सभी स्टेप्स आप लिखते जाओ और साथ में ड्रॉ भी करते जाओ, बिकॉज ऑफ यूजिंग द जियोमेट्रिकल मेथड हाउ टू लोकेट दिस अंडर रूट 2, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादातर बोर्ड के एग्जाम में 10th में भी ये यूज होता है और 9th में भी यूज होता है. So you must be careful about it. So how to represent this under root 2? First step is that express the number in the root as the sum of two square number. मतलब 2 है, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होता है 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 होता है आपके पास 2. तो पहला एग्जाम्पल आपको एक नंबर लेना है, वो नंबर का स्क्वायर आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आपका सम हो जाता है वो 2. सेकेंड स्टेप में ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड क्रिएट ए राइट एंगल ट्राइंगल यूजिंग द नंबर्स ऑब्टेन इन स्टेप 1. अब देख सकते हो कि स्टेप 1 में जो नंबर्स आपको रिप्रेजेंट हुआ है, तो 0 से 1 का मेजरमेंट 1 है और मतलब A से C का 1 है और वर्टिकल लाइन है वो भी कितना है 1 है. तो ये दोनों आप रिप्रेजेंट कर दो. सो AC इज इक्वल टू 1 यूनिट and BC is equal to also 1 unit. Join AB. अब A और B को आप ज्वाइन कर दो to form a right angle triangle. तो दूसरे स्टेप में आपको ड्राइंग करना है. पहले स्टेप में आपको वैल्यू लेनी है 1 स्क्वायर 2, फिर A, B एंड C पॉइंट्स आउट करना है. AC की वैल्यू 1 यूनिट रखनी है और BC की वैल्यू 1 यूनिट. ये सब आप रूलर से करेंगे. कैसे? स्केल से करेंगे. स्केल से कर दिया, ड्रॉ कर दिया, ज्वाइन कर लिया बाद में. अब जो चीज आपको बता रहे हैं वो स्टेप नंबर 3. वी नो द वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू हमें पता है क्या है, अंडर रूट 2. पाइथागोरस रूल में अभी हमने अगले पॉइंट्स में सीखा. तो ए बी की वैल्यू एक्चुअल में क्या है, अंडर रूट 2 है, यूजिंग द पाइथागोरस थियरम. सो यहाँ पे आपको एग्जाम्पली डिस्प्ले भी होता है कि कैसे वो ए बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड होती है. ए बी स्क्वायर 1 स्क्वायर अंडर रूट किया, अंडर रूट में अंडर रूट 2 आया, तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2. सो हाइपोटेनियस इज ए बी, सो ए बी ऑलवेज कंसिडर्ड एज ए अंडर रूट 2. तो ये हुआ आपका स्टेप नंबर 3. नाउ वी आर यूजिंग द स्टेप नंबर 4. ड्रॉ एन आर्क ऑन द नंबर लाइन यूजिंग रेडियस ए बी. आपको अब इतनी आर्क लेनी है, कितनी, जितनी लेंथ ए बी की. तो आपको मैंने पहले ही बोला है, दिस हेल्प्स अस टू लोकेट द इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन विच इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस. तो हमें क्या करना है कि ये जो लेंथ ए बी की आपको दिख रही है यहाँ पे ए बी, ये जो लेंथ है वो कैसे मेजर करेंगे. कंपास का एक लेग यहाँ पे रखेंगे और दूसरा लेग यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे, ए से बी तक खींचेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट फिक्स कर देना है और दूसरा लेग यहाँ पे ले जाना है. और जैसे आप ले जाएंगे दैट इज बिकम ए वन लेंथ. अब इस कंपास की पोजीशंस को हिलाना नहीं, बट वही पोजीशंस के ऊपर रह के आपको ऐसे ड्रैग करना है. समझ में आ रहा है मैं कैसा बोल रहा हूँ कि एक पॉइंट्स के ऊपर मैंने रखा एक लेग, तो दूसरे पॉइंट्स के साथ मैंने अभी जोड़ दिया है, सपोज मान लो यहाँ तक. अब ये नीचे वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, वहां पॉइंट पे लेग रख के पेंसिल का वाला दूसरा अपने कंपास में दूसरे छोर पर पेंसिल लगाइए, वहां से आप इसी पॉइंट से के ऊपर से आप खींचेंगे नीचे की तरफ. तो नीचे की तरफ जैसे खींचेंगे विदाउट मूविंग योर कंपास को ऐसे मूव करके यहाँ पे खींचेंगे, तो दैट इज ए वन पर्टिकुलर आर्क it will be generated. अब ये जो आर्क जनरेट हुए वो जहां पे ये नंबर लाइन पे टच होती है वो होता है हमारा अंडर रूट 2. समझ में आ गया? क्योंकि हमें पता है कि अंडर रूट 2 है वो 1 और 2 के बीच में है, तो ये लाइन थोड़ी एक्सटेंड कर दो और 1 और 2 के बीच में ही हमारा अंडर रूट 2 आना चाहिए. तो वेरी सिंपल है, आप अपना कंपास और रूलर का ही यूज करेंगे तभी ये आर्क पॉसिबल होती है. और यहाँ पे ऐसा मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है कि रूलर में से सिर्फ एक ही यूनिट रखो, बट वो मेज़र कर लो कि
ये जो 0 से 1 का यूनिट है और 1 और 2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट का होना चाहिए। 1 यूनिट मतलब आपको ऐसा लगे आपकी स्केल में, जो आप आर्क ड्रॉ करेंगे तो अच्छी तरह से दिखे ऐसे, तो आपका फिगर लुक्स लाइक दैट, ऐसे बनना चाहिए। इज इट क्लियर? तो हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन that we considered here. So this is very easy things and this is a one particular points of it. Next one, in case 3 suppose हमें वही चीज अंडर रूट 5.3 अंडर रूट 5.3 को, मतलब हमें डेसिमल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो ये मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। दैट पर्टिकुलर required a slightly different method to represent irrational number on the number line, क्योंकि अभी पॉजिटिव नंबर था अंडर रूट में, तो वो थोड़ी हमें इजी लगती थी। अब अंडर रूट 5.3 यानी डेसिमल को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो थोड़ी अलग मेथड है। कैसे करेंगे हम? In this case as well, we will use the following two roots to represent the rational number on the number line. Pythagoras theorem तो यूज करेंगे ही, साथ में कंस्ट्रक्शन यूजिंग ए कंपास एंड रूलर। कंपास एंड रूलर का यूज करके वी हैव टू यूज द वन पर्टिकुलर डेसिमल नंबर्स ऑफ इरेशनल। सो दैट्स वाई वी हैव टू यूजिंग सम स्टेप्स। स्टेप्स अच्छी तरह से देख लो। स्टेप्स फर्स्ट, ड्रॉ ए बी ऑफ। अब आपको ए और बी जो पॉइंट्स है वो कितनी लेंथ की बनानी है, स्केल में आप मेज़र कर लो। स्केल में 5.3 जहाँ पे होती है वहाँ से आप ए और बी की एक लाइन ड्रॉ कर लो जिसका मेज़रमेंट होना चाहिए 5.3। तो ए और बी के बीच में कितना अंतर होना चाहिए? 5.3। तो पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे रूलर की हेल्प से। आप पहले मेज़र करेंगे 0 से स्टार्ट करके 5.3 तक की एक स्केल की हेल्प से, रूलर की हेल्प से आपको ड्रॉ कर लेंगे। तो फर्स्ट ड्रॉ ए बी ऑन द लेंथ 5.3। अब आपको क्या करना है, उसी स्टेप्स में एक्सटेंड बी टू सी। आपको बी तक तो 5.3 है ही, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 5.3 है। अब बी को सी तक एक्सटेंड करना है। कितने यूनिट का? 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का आप वहां से एक लाइन ऐड कर दो, मतलब बी टू सी हैविंग द 1 यूनिट। तो ए बी हुआ 5.3 और बी सी हुआ 1। इतना समझ में आ गया? नाउ लेट ओ बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब ये जो पूरी ए सी बनी है आपके पास, उसका एक मिड पॉइंट ले लो। मिड पॉइंट जो होगा वो सेंटर में होना चाहिए। वो कैसे मेजर करेंगे? सेंटर आप कर सकते हो ना, 5.3 प्लस यानी 6.3। 5.3 में एक ऐड कर दो तो 6.3 होता है, और 6.3 को 2 से डिवाइड करो तो 3.15 होता है। तो एक साइड 3.15, दूसरी साइड 3.15, तो बीच में जो आपका ओ आया, ओ पॉइंट्स, दैट इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ इट। तो दोनों साइड कितने कितने मेजर्स होंगे? ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, दोनों इक्वल है। तो 5.3 प्लस 1 डिवाइड विथ 2, ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो दैट्स व्हाई वी गॉट 3.15 हियर। तो समझ में आ गया ये पूरी चीज में क्या करना था। पहले 5.3 की एक लेंथ ड्रॉ करो जिसका नाम दो ए बी। बी से सी 1 यूनिट का एक्सटेंड करो। अब ये पूरी 5.3 प्लस 1 का मिड पॉइंट ले लो। मिड पॉइंट लेने के टाइम पे आपको दोनों का टोटल करना और 2 से डिवाइड करना है, लाइक दैट। एंड देन आफ्टर we have to use as a center point O. That's why 3.15, 3.15, both sides we have. So this is the first step. Now the second steps, using O as the center. O को center मान के एज द सेंटर ड्रॉ ए सेमी सर्कल विथ रेडियस ओ ए। अब आप देख सकते हैं ए और ओ के बीच में जितनी भी रेडियस है वो कितनी है? 3.15 है। आपको पता है ना कि दो पार्ट्स हमने रखे थे, तो एक पार्ट्स हुआ लेफ्ट साइड वो 3.15 का होगा और ओ से सी के बीच में भी 3.15 होगा।
तो ओ ए जितनी रेडियस है वहां से, इस पॉइंट से आप कंपास का यूज करके उसी पॉइंट से आप एक लेग यहाँ पे रखेंगे ओ के ऊपर, सेंटर के ऊपर, और पेंसिल वाला लेग है वो ए के ऊपर रखेंगे और यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। अब जैसे सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम डी, तो डी से एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है, डी से एक परपेंडिकुलर लाइन बी तक ड्रॉ कर लेनी है ऑन द सेमी सर्कल टू द लाइन ए सी। ए सी से परपेंडिकुलर हुआ डी बी, सो ज्वाइन ओडी, ओडी को ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा यहाँ पे एक राइट एंगल बन जाएगा। सो ऑब्वियसली ओ बी is equal to AB minus OA. This equation must be clearly considered. So AB having 5.3 obviously. So OB having कितना है 5.3 minus 3.15. So we got 2.15 here. तो ये हो गया स्टेप नंबर 2। अच्छी तरह से सभी स्टेप्स लिखो और साथ में जो ड्राइंग है वो ड्राइंग स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। स्टेप नंबर 3 में उसी चीज को हम यूज करेंगे। सो ओबीडी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ओबीडी आप फिगर में देख सकते हो, ओबीडी इज ए राइट ट्राइंगल, यूज द पाइथागोरस वेयर द सी स्क्वायर, obviously c square is equal to a square plus b square, so find the value of bd। so od square मतलब ये जो हमारी हाइपोटेनियस है वो ये है, od square is equal to bd square is equal to OB स्क्वायर, तो तीनों साइड हो गई। सो BD स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। सो OD स्क्वायर हमारा है 3.15 का स्क्वायर, और अभी हमने सेकंड स्टेप में फाइंड किया वो 2.15 OB का वैल्यू है, तो दोनों का स्क्वायर हम यूज करेंगे। देन वी हैव टू गॉट BD स्क्वायर इज इक्वल टू 5.3। 5.3 का स्क्वायर वहां से निकालेंगे तो वो अंडर रूट में आ जाएगी। तो ये जो चीज यहाँ पे आपको दिख रही है दैट इज थर्ड स्टेप्स ऑफ इट। देन फाइनल 4 स्टेप्स, टेक बी एज ओरिजिनल सेंटर एंड एक्सटेंड बी सी। आप बी को सेंटर मान लो और बी से सी का एक्सटेंशन कर लो। ड्रॉ एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू दैट ऑफ बी डी। अब बी डी जितनी लेंथ है उतना नंबर लाइन के ऊपर आप रिप्रेजेंट करो। दिस गिव द लोकेशन ऑफ द अंडर रूट 5/3, मतलब ये पॉइंट से आप कंसीडर करेंगे तो जो पॉइंट्स आपको मिलता है वो एग्जैक्ट बी ई जो आपको मिलेगा वो कितना होगा अंडर रूट 5.3। सो दिस गिव्स द लोकेशन ऑफ अंडर रूट 5.3 ऑन द नंबर लाइन। सिंस 5.3 lies between 4 and 9, the value of under root 5.3 lies between 2 and 3। तो कहाँ पे यूज होता है 2 and 3 के बीच में। तो ये हुआ आपका स्टेप्स, एंड ये अच्छी तरह से आप याद रख लो ये दोनों चीज को। तो आज जो दो मेथड हमने सीखी अंडर रूट 2 यानी पॉजिटिव अंडर रूट नंबर की, और दूसरी हमने डेसिमल नंबर्स की, इरेशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन के पर रिप्रेजेंट करता है। First one is very easy, but second one is something orthodox. So you have to more practice on under root 5.3. Is it clear? जितनी बार आपको देखना पड़े इतनी बार उस स्टेप्स को देखो, आप अपनी सप्लीमेंट्री में से देखो, और कंपास और रूलर का यूज करके ही बनाना है। ओके, तो ये दोनों स्टेप्स वाइज, और आज जो 4.1 मैंने आगे लेक्चर में दिया उसका 5 क्वेश्चंस ABCDE, और ये दोनों रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 5.3 विथ द स्टेप्स एंड ड्राइंग आप अपनी बुक्स, फेयर बुक्स में लिख लेंगे और वही चीज आज मुझे होमवर्क में सेंड करें। इज इट क्लियर? फिर से मैं बोल रहा हूँ 4.1 प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4.1 के ABCDE एंड both the representation of the irrational number under root 2 and under root 5.3, both having the all the steps and the figure. So that's all for here. Now we conclude the session today. I hope everyone is understood well and do more practice on both of the
representation of irrational number. Thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture. Happy learning. Thank you.